education and health. So basic infrastructure, it is developed by government only. Yes, sir. Providing security, internal security and external security. External. There are always threat from other countries which are at border. Yes, sir. So those countries or any other country may be. So that is external security. And internal security, within country there may be some infiltrators which in form of disguise entered within your country and may plan something. So this is also the responsibility, and if something happens then the responsibility goes to government. So what is the responsibility of government? To provide security, internal security, external security, to give facility to the public, okay? Transport facility, and it, in addition, the medicinal facility, that is any kind of medical help. Yes. So this is, ये सब गवर्नमेंट की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं. Duty. Yes. Now, several arrangements are made in all modern democracy to attend these tasks. These arrangements are called institutions. For these various institutions are made. There are government hospitals. Even now, that is government schools are made. To provide basic education is also the responsibility of, even universities are there. These are also pertaining to government only. Yes. So that is primary, secondary, higher secondary. There are many types of schools, government schools. Okay, a democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. If all institutions are working properly, if there is something which is malfunction going on in any of the institution, like government hospitals are not working properly, they sell their medicine to somebody else. This may be the reason doctors are not coming properly. Then it is the failure of government. बात समझ में आ गई ना? So it is write down that governing a country involves various activities. Two, government is responsible for internal as well as external security of people. In this also there are, it has to provide education and health for all. Health for all. Also basic facilities, ठीक है? Other basic infrastructure arrangements, other which pertains to public health, public welfare and communication also is responsibility of government. Now see, in case of transport, there are some state transports are there. Like here you are seeing buses are coming. These are state buses.
ये कैसी बसेस है? स्टेट बस। जो 2 नंबर की बस यहाँ आती है ना, इससे वो स्टेट बस है. सो पब्लिक है, बट देयर आर ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, लाइक देयर आर एयरक्राफ्ट, एविएशंस. दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज ड्यूटी ऑफ central government. So transport is subdivided into various parts. Okay. In the similar manner, education, there are some kinds of state governments are providing education. State, these are the government schools, are state government schools. Why? Because there the teachers are appointed who are knowing that is this Marwadi language or Mewadi language. They may talk in local language also. Okay. So this is so. It is divided, but these are all part of government. And these duties are performed by institutions. इंस्टीट्यूट होगा ना, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, ये एक इंस्टीट्यूट है. वो सारी बसें चलाएगा, दैट इज कम्युनिकेशन के लिए राजकीय बसें. सो इस तरीके से सच अरेंजमेंट्स are made in to attend this task. Several arrangements are made to accomplish these. ये इसको it belongs to, that is which pertains to public welfare, which are related to. Pertain का क्या मतलब है? Related to. So several arrangements made to accomplish the task. Accomplish का क्या मतलब होता है? पूरा करना. पूरा करना. So accomplish the task. कुछ arrangement बनाए जाते हैं. These are called institutions. Institution का हिंदी मीनिंग होता है संस्थान. So now, and work is assigned to them for different tasks. Different institutions are there. Prime Minister and the cabinet are the institutions that make important policy decision. Now chapters name क्या है? Working of institution. हम बहुत बेसिक चीज पे देख रहे हैं. हम यहाँ देख रहे हैं वेलफेयर का इंस्टीट्यूशन, हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूशन, लेकिन जो हमारे 3 मेन इंस्टीट्यूशन है, जो 3 मेन पिलर है, एक जुडिशरी है जो न्याय व्यवस्था देखती है, एक लेजिस्लेटिव है, क्या वो इंस्टीट्यूशन नहीं है? अवर डेमोक्रेसी इज स्टैंडिंग ऑन 3 बेसिक पिलर्स. दीज आर कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव. हाँ बोलो. जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव. यस, दीज आर 3 मेन इंस्टीट्यूशंस. सो democracy has 3 main institutions. Is based, या ये कह सकते हो based और standing on 3 pillars. These 3 pillars are judiciary, legislative, judiciary and executive. And okay, now ये चीज क्या है जो कानून बनाती है? इसको कहते हैं विधायिका. विधि का मतलब जानते हो? लेजिस्लेशन. विधि विधान ये भगवान का विधान है. विधान का मतलब कानून. विधि, विधायक. फिर विधायक का मतलब समझते हो? जो कानून बनाए. विधि से बना है विधान. विधि को कहते हैं कानून. विधि से विधान है. भगवान ने बना दिया तो विधान हो गया. बहुत बड़ा कानून है तो विधान हो गया. और बहुत है, सबसे बड़ा कानून है तो कहेंगे संविधान. क्या कहेंगे? संविधान. पूरा सारा हमारा यही विधान. वैसे छोटे छोटे कानून है तो विधि बोलेंगे. ठीक है.
उसी से जो कानून बनाए विधायक। सर संविधान क्या है? विधान यानी हमारा सबसे महत्वपूर्ण कानून की किताब विधि से बना है, विच इज द सबसे बड़ा कानून तो विधान होता है कि नहीं। Yes, और उससे भी बड़ा जो कानून बना है, संविधान। सबसे बड़ा कानून बना है विधाता, नहीं कहते क्या, विधाता ने ये विधान बनाया है। और विधायक जो छोटे छोटे कानून बनाए उसे क्या कहते हैं। तो उसी तरीके से और जहाँ ये कानून बनाए जाए उसे क्या कहेंगे, विधानसभा, विधान परिषद। किसको सर? जहाँ कानून बनते हैं, जिस बिल्डिंग में बनते हैं, दैट इज विधान, है ना। जिस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट दैट इज संसद हो गई। अब वैसे विधानसभा एंड विधान परिषद दैट इज असेंबली हॉल, असेंबली कहते हैं कि इसको। तो इस तरीके से विधायिका और दूसरा एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है, सर जो फॉलो कर रहा है हाँ, कार्यपालिका जो काम लागू करें, ठीक है। दोज लॉज आर प्रोमलगेटेड बाय IAS अफसर्स एंड पुलिस और देयर सर प्राइम मिनिस्टर ये सब भी तो आते हैं इसमें। प्राइम मिनिस्टर्स, दे आर लेजिस्लेटर्स, जो कानून बनाते हैं। उनका काम नहीं कि जा जाके तुम क्या कर रहे हो, कानून तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में भी वोट करते होंगे ना कि law- पार्लियामेंट में जो वोट करते हैं, दे आर, इट इज ऑल लेजिस्लेशन, they are making laws, they are there for making laws. However, such laws are promulgated by सिविल सर्वेंट। civil servants, और फिर उनका हेड भी होता है सिविल सर्वेंट्स का, मालूम है, IAS IPS ये सब होते ही हैं। इवन देयर आर एग्जीक्यूटिव में स्कूल के टीचर्स तक आ जाते हैं, बैंक के कर्मचारी, वो सब है जो कानून बनते हैं। क्या वो बैंक में वो लागू नहीं होते हैं कि भाई डिमोनेटाइजेशन होना है तो कौन लागू करता है, बैंक वाले करते हैं। तो वो सब एग्जीक्यूटिव में, जितने भी बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने लोग हैं वो सब क्या है, क्या एग्जीक्यूटिव में नहीं आ जाएंगे। ये डिफेंस है सर। डिफेंस इन कानूनों से नहीं चलती है। डिफेंस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। डिफेंस का एक चार्टर होता है, उसकी अपनी बुक होती है, और वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में आती है, वो इनमें से किसी में नहीं आती। नहीं तो उसमें भी पॉलिटिक्स चली जाए, फिर वो चीज़ इसलिए नहीं है। वो बहुत शुरू से जब से बनी है तब से बन रही है। However, government in its budget allots money for defense as a name of defense budget. Only that much is there. There are certain defense minister is there, which coordinates with all the three forces and their heads. What are your needs? What do you want? Do you want to purchase something? I will put your demand there, and I will help you to purchase those. But best that much is there. डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, हमारे कौन है, राजनाथ सिंह। वो इतना ही काम करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ओके, और दैट इज जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करता है, CDS। ये सही बता रहे हैं, CDS, ठीक है कि नहीं। विपिन रावत जो अभी चले गए, और CDS है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो भी सर्विसेज हैं उनका स्टाफ जो होता है वो होता है, ठीक है कि नहीं। और जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जज। जुडिशरी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स इफ समबडी इज ब्रीचिंग द लॉ, ब्रीचिंग का मतलब है उल्लंघन करता है। इफ समबडी इज ब्रीचिंग द लॉ, then he or she is liable to be punished. And which institution is there for look after whether you will wear hijab or not wear hijab? Who will? सर आ गया, Huh? सर आ गया केस। कल केस आया है, so who will decide? जुडिशरी। Judiciary will decide. It is not a political सर, system. मुस्लिम लोग पहनते मुस्लिम लोग पहनते हैं, but they will wear hijab in school or not wear hijab. Who will decide this? जुडिशरी। Judiciary. Other with pomp and show on road, you may with placards you may go hijab is legal, hijab is illegal. That does not matter. What the judiciary say, it is as per constitution only, and you have to follow. But this order is yet to come. Yet it is not come. 5 judge bench is there. Earlier 2 judge bench was there, small bench. But they were saying no, it is a big matter. We cannot take decision. This matter should go to big bench. तो big bench का क्या मतलब होता है? हाई कोर्ट, जहाँ 5 जज बैठे। बिग बेंच का मतलब कहीं की भी बिग बेंच हो सकती है। तो 5 जज मिलकर वहाँ डिसीजन ले रहे हैं। लड़ाई नहीं करते। देखिए, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स। इन केरला
हिजाब इज परमिटेड। हिजाब क्या होता हिजाब का मतलब जो सर पे बांधा जाए, हिजाब ऐसे हो वो तो गया। पूरा पहना सर वो है यहाँ ना, वो बुर्का नहीं सर वो यहाँ देखिए, तक होता है। जो सर, वो white सर, क्या सर को होता है? ढके। नाउ सी, तीन चीजें, हिजाब, नकाब, बुर्का। जो हेड स्कार्फ है वो हिजाब है, जो यहाँ करे नकाब। वो नकाब, और जो पूरी बॉडी को ढक ले या जाली हो वो बुर्का। बट इट इज द केस ऑफ हिजाब ओनली। तो कौन इसको डिसाइड करेगा? जुडिशरी। फॉर एनी मैटर बिटवीन मैटर ऑफ स्टेट्स, कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी जानती हो? तो कावेरी का कितना पानी कर्नाटक लेगा, कितना तमिलनाडु लेगा? सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया तो पूरे इंडिया के लिए होगा ना। Supreme Court, if the matter is between two states, then it will go to Supreme Court. If it is a local matter of any school District court. within, So High Court. see, High Court is a district court is also there, but you may directly also appeal to High Court. In Rajasthan, High Court is in Jodhpur. कैपिटल के बगल में। कैपिटल के बगल जो सेकंड कैपिटल आप मान लीजिए, सेकंड इम्पोर्टेंट सिटी उसमें होता है, ठीक है? तो दीज आर 3 प्राइम इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर में सारी चीजें आती हैं। अब अगला देखो कि प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। अब वो चीज आ गई लेजिस्लेटिव, कि प्राइम मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब समझते हो? जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी आर इंस्टीट्यूशंस जिनको मंत्रालय मिला हो, मिनिस्ट्री, वो सब कैबिनेट कहलाते हैं। आर इंस्टीट्यूशन दैट आर पॉलिसी मेकर, वो क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी मेकर एंड या लॉ मेकर भी कह सकते हो, ठीक है? ये है, तो इनको हम कहेंगे लेजिस्लेशन। और ये कौन सा लेजिस्लेशन है? हमारे यहाँ 3 टियर सर्विस है। एक कहाँ पे है? यूनियन गवर्नमेंट, एक कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी चीज लोकल। ये बात मालूम है कि नहीं? तो कौन कौन से हमने बताई थी? ये पहले भी बता दिया था हाँ, उसको। yes, sir। यूनियन गवर्नमेंट इट इज बाई किससे होती है? जनरल इलेक्शन से होती है, ठीक है? जनरल इलेक्शन से है। और इसके भी 3 यही हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटर, तो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इसमें जो लेजिस्लेशन है उस बिल्डिंग का नाम क्या है? पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट। और फिर एग्जीक्यूटिव, इसमें आईएएस रहेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस भी रह सकते हैं, ठीक है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। तो तो इंस्टीट्यूशन ही है ना। इंस्टीट्यूशन ही है, इनको मिला के जो इंस्टीट्यूशन है, फिर उनकी अपनी बिल्डिंग होगी, पुलिस मुख्यालय होगा, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, आपके जो स्कूल के लोग हैं ना, टीचर्स, दीज आर आल्सो कमिंग अंडर एग्जीक्यूटिव। So all central government employees, central government employee excluding army, navy, CRPF, central reserve police force, ये सब नहीं आएंगे। सर ये तो आता है ना सीआरपीएफ स्टेट में। हाँ आते हैं, बट एग्जीक्यूटिव में मतलब ये अपना सुरक्षा का है। जैसे ये चीजें CRPF आ सकती है, क्योंकि उसको बुलाया जाता है चुनाव से सब होते में। हैं। हाँ, बाकी सेना वो है, वो राष्ट्रपति से कहते हैं कि मुझे सेना दे दो, तो राष्ट्रपति साइन कर देता है, ओके आई एम गिविंग यू माय मिलिट्री, माय एयर फोर्स। तो वो आपस में कंसाइल, ठीक है, रिकंसाइल करके करते हैं। तो ऑल सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये चीज एग्जीक्यूटिव हो गई, ठीक है? और तीसरी चीज जुडिशियरी, और जुडिशियरी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में है। तो सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग इट्स ओन फ्लो चार्ट, वो इंडिपेंडेंट काम करता है। सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर है बहुत सारे हाई कोर्ट के अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट ना हो तो सेशन कोर्ट, गांव में कस्बे भी तो होते हैं, कस्बा, कस्बे को क्या, तहसील तहसीलदार है ना, छोटे जो सिटी और विलेज के बीच में,
इसे क्या कहेंगे? Definitive. सुप्रीम कोर्ट। सर उसके नीचे पंचायत है। हाँ, अब हर एक पंचायत में तो ये नहीं हो सकता है, मतलब सरपंच है, बट जो भी है आसपास जो सेशन कोर्ट है वहाँ जाके आप करो, पंचायत क्या उसमें फैसला देगा? नहीं। तो इस तो पंचायत किस लिए होता है? एक सरपंच होता है। पहले तो क्या होते थे, पहले का ये सिस्टम है कि पंचायत होती थी तो वहाँ पर क्या होता था, 5 लोग बैठते थे, वो चुन लिए जाते थे, वो कोई मेन लोग होते थे। तो उसी में फिर क्या होता था कि वो लोग जो डिसीजन देते थे। अच्छा, 2 पार्टी हैं, जैसे आप लोगों में कन्फ्लिक्ट हो गया तो आपसे पूछा जाएगा कि इनको पंचायत में उसी समय बनाया जाएगा, इनको तुम चुनते हो, तुम बोलो किसको चुनोगे? एक आपका भी मेंबर रहेगा, एक ये भी बोलेंगे हाँ मैं इनको अपना पंचायत चुन। 2 आपके रहेंगे, 3 पहले से रहेंगे, तो 5 लोग हो गए। अब वो जो फैसला दें, 3 पहले से 5 लोगों को पंचायत कहते हैं, 5 मेंबर्स कमेटी, वो उसी गांव के लोग रहेंगे। सर बूढ़े वो 3 लोग कौन से? वो पूरे गांव वाले चुन के रखते हैं। और हम दोनों जैसे जिसमें कन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो उस केस में क्या होता है कि 2 लोग, वो समझू साहू और अलगू साहू के बीच में झगड़ा हुआ था, प्रेमचंद की कहानी है। तो उसमें ये पंचायत की बात आई थी कि भाई आप किसको चुनना चाहते हैं, आप किसको चुनना चाहते हैं। तो ये बात पंचायत ने फिर निर्णय दिया, ठीक है कि नहीं? अच्छी कहानी थी, उसमें ये बात कही गई थी कि हमने तुम्हें बैल बेच दिया, तुमने उससे खूब काम लिया, लेकिन काम लेने के बाद तुमने उसे खाना नहीं दिया, वो मर गया, तुमने हमको पैसा नहीं दिया। फिर हमने कहा पैसा दो, तो आप बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों, बोले काहे का पैसा, तुम्हारा बैल कमजोर था, मर गया, पैसा तो वो फिर बोले तो तुमने तो उसको खाना देना चाहिए था। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा नहीं है। तो फिर ये तो ऐसी बात हो गई। तो एक ये बात हो गई। कहानी का नाम क्या है? हैं? कहानी का नाम है 2 बैलों की 2 बैलों की कथा नहीं है कि उसमें मतलब उनको देवता स्वरूप बताया गया है। जो समझू साहू अलगू साहू की कहानी है, तो उसको पढ़ने से भी हम बता देंगे, ठीक है? तो पंच परमेश्वर, कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। फिर जिसने मारा था, ठीक है, तो जिसने मारा था उसको कहा गया, हाँ समझू साहू ने मार दिया था, तो पंचों ने फैसला किया नहीं नहीं बैल सही थे, इनको पैसा दो। तो पैसा देना पड़ गया। अब इसका विरोध हो गया, इसने हमसे पैसा ले लिया। फिर जब दूसरा वाला था, वो अपनी माँ को खाना नहीं देता था और माँ ने अपनी सारी जायदाद उसके नाम से कर दी थी। तो अब जब सारी प्रॉपर्टी कर दी थी, खाना नहीं देता था दूसरा वाला जिसने बैल मारा था। तो अब इसकी बारी आई, तो उसने अलगू साहू से पूछा, बोलो अलगू साहू तुम पंच परमेश्वर बनते हो। अब इसका दिल बैठ गया, बोला हमने तो इसके खिलाफ निर्णय दिया था, इसी को पंच बना दिया। समझ आई बात की नहीं? देखो, खिलाफ निर्णय दिया था, हम इसको पैसा नहीं दे रहे थे और इसी को पंच बना दिया। बोलो तुम्हें मंजूर है? तो उसने बोला हाँ पंच तो देवता होते हैं, मुझे तो मंजूर है, मुझे क्या इतराज हो सकता है। लेकिन इसका दिल तो बैठा जा रहा था कि अब या तो मेरी जायदाद चल जाएगी। तो इसने निर्णय दिया कि देखो तुम्हें माँ को हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको दिया है, नहीं तो उन्होंने जो जायदाद दी है वो रद्द समझी जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाया गया कि पंच अपना निर्णय दे देता है, जो वहाँ बैठता है पंच कोई भी आधे घंटे में ऐसे हो जाता है। हाँ ऐसे ही बना दिया जाता है उन्हीं से। तो वो अभी वो पंच वाला निर्णय नहीं चलता है। कई बार आपने देखा है खाप की महापंचायत होती है, वहाँ उल्टे पुल्टे निर्णय दिए जाते हैं। जाट लोग नहीं करते हैं, जाट लोग बहुत वो करते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो वो तरह तरीके की सारे जाट की महासभा होती है और वहाँ पर निर्णय दिए जाते हैं, सरकार के विरुद्ध भी निर्णय होते हैं, बट दैट इज नॉट लीगल। लीगल क्या होता है? सरपंच रहेगा, बस एक सरपंच तुम लोगों का वेलफेयर देखेगा, पैसा अलाउट करेगा आसपास वहाँ के गांव के लिए, और तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पास का सेशन कोर्ट होता है। समझ में आ गई बात? जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको कहाँ जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होती, छोटे मोटे केसेस की होती है, फिर बड़ा हो जाएगा केस तो हाई कोर्ट में। अच्छा, ये यूनियन गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया? ये टॉप मोस्ट ईयर है, और इसमें कौन होता है? इसका हेड कौन है लेजिस्लेशन का? और इसके 2 अलग अलग ब्रांचेस कौन सी हैं बताइए? दैट इज लोअर हाउस, हाँ बोलो, लोअर हाउस और अपर हाउस, विधानसभा। हाँ तो बिल्कुल सही। लोक नहीं, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा, और दूसरी कौन सी है? राज्यसभा। राज्यसभा। इसको कहेंगे लोअर हाउस, अपर हाउस। एंड दिस इज
अपर हाउस। तो इसका स्पीकर कौन होता है? इस जैसे ये इसका कोई भी अभी ओम बिरला है हेड बना तो देते इसका हैं। जो हेड है उस हेड कौन होता है? स्पीकर, ठीक है ये। और इसका हेड वाइस कौन प्रेसिडेंट, है? वाइस ये प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ये चीज होगी, ठीक है। बाकी हेड ऑफ कैबिनेट होगा, वो तो एक रूलिंग पार्टी होगी, एक अपोजिशन पार्टी होगी। रूलिंग पार्टी का हेड कोई होगा, Yes. वो प्राइम मिनिस्टर होगा। अपोजिशन पार्टी का भी हेड होगा, वो बात सब आपको उन लोगों को पता है। Yes, sir, yes, sir. रूलिंग पार्टी का भी हेड होगा। और एग्जीक्यूटिव में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का है उसका हेड कौन है? तो क्या? करेक्ट, ये ठीक है। क्या? तो क्या? सीजेआई, ये- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया। सीजेआई कौन? CJI। सर वो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का हेड, एक मेंबर। अभी पिछले साल जो रिटायर हुआ 2 साल पहले, वो जोधपुर का ही था। यहाँ कितने फूल माला के साथ स्वागत हुआ जब लौट गए। अब मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन कितना न्यूज़पेपर में आया था उसका कि उसने हमारे जोधपुर का गौरव बढ़ाया है। Yes, sir. ऑफ इंडिया नाम देख के बताया जा सकता है, लेकिन वो पिछले वाला जो लास्ट यहीं के थे, सर, अभी तो कोई और। मीना होंगे। नेम ऑफ लास्ट सीजेआई, नेम ऑफ सीजेआई ऑफ जोधपुर। वो लोग शायद लैब बना रहे तो हैं, लैब बना रहे हैं बड़ा। जी। तो वो जो है अभी इसमें नहीं दे रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। तो अब यूनियन गवर्नमेंट आपको पता चल गई। इसके बाद दूसरी गवर्नमेंट कौन सी है? दैट इज ओके स्टेट। तो दैट इज यूनियन गवर्नमेंट एंड दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। ये बात सही है। तो ये डेमोक्रेसी का फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर, बात ना करो। फिर इसमें भी 3 पार्ट हैं। ओके, नाउ वन इज लेजिस्लेशन। तो इसमें भी वही थी। हाँ, ये तो वही रहेगी ना, बट उससे लोअर लेवल पे। बट दिस इज इंडिपेंडेंट, इनका लेजिस्लेशन अलग है। हाउएवर इट शुड नॉट क्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और अगर इनके नियम में टकराव होता है, देन जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय करेगा। ऐसा भी हो जाता है, मतलब ऐसा हो सकता है ना टकराव। ऐसा कई बार हो सकता है कि जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसको राज्य लोग नहीं मानते हैं। रेलवे ऐसे बहुत सारे वेलफेयर स्कीम है जिसे नहीं मान रहे हैं। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हिजाब हमारे यहाँ बैन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये नियम लगाया जाता है, ये लोकसभा में आ जाए, लोकसभा में। केरला नहीं मानेगा, उसके यहाँ चल रहा है, कहता नहीं हम तो मानेंगे। उनके यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वो मानते हैं। सर अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स केस हो जो सुप्रीम कोर्ट भी ना कर पाए, अरे सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, सीधे। उसी के ही हाथ में। वो भी ना अगर मान लीजिए 2 कंट्रीज के बीच में, तो इंटरनेशनल कोर्ट है, फिर क्या? इंटरनल कोर्ट यूएस से चला, है? वो यूएस से चलाता है। यूएन, अच्छा, ये- यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल कोर्ट है। जैसे हमारा एक अभी वो कौन था कि जो पाकिस्तान में उसने कैद कर लिया था, अभिनंदन। हैं? अभिनंदन। अभिनंदन नहीं, जो अभिनंदन। क्या नाम था कि बोला ये तो क्या है कि ये जासूस है। क्रैश हो गया था। क्रैश? क्रैश नहीं से वो मिल गया था, उसको कुछ था। सर पैराशूट से कूदे थे पाकिस्तान में कूदे थे। तो वो उसको अभी तक सर वो वो तो कोई फार्मर था ना जो पकड़ लिया था। नहीं, फार्मर नहीं, उसका भी नाम था। तो उसके लिए केस अभी भी चल रहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट में कि नहीं हमें वकील करने दो, ऐसे करने दो। तो इंटरनेशनल कोर्ट है जो भी 2 देशों के बीच का मामला है। इसको तो यूएन बताएगा। भाई हमारे यहाँ के किसानों को प्राइम मिनिस्टर ने चीनी वालों को सब्सिडी दे दी, गन्ना वालों को बोल दिया कि तुम्हारा गन्ना बहुत ये सब्सिडी है, इतने में खरीदेंगे।
तो अब जो गन्ना उन्होंने लिया प्राइम मिनिस्टर ने, फिर वो गन्ना बहुत सारा ले लिया, बोलो ठीक है मैं MSP ज़्यादा किसानों ने कहा अरे सरकार तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बहुत ज़्यादा दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना गवर्नमेंट देती है, सब लोगों ने अपना गन्ना किसको बेच दिया बताओ, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट इतना गन्ना करे क्या, वो सस्ते में बेचने लगी। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो चीनी के कटोरे कहे जाते हैं, दो जगह चीनी बहुत है, उनकी चीनी देश में कहीं विश्व में बिक ही नहीं रही है। कह रहे हैं हमारे चीनी का दाम 20% गिर गई है, भारत क्या कर रहा है, ये क्यों छूट दे रहा है, सस्ते में क्यों बेच रहा है। तो फिर वो गए कोर्ट में, इंटरनेशनल। सर इस बार भाई आप देखो समझ रही हो बात कि नहीं समझी बात को। जैसे इंडिया ने बहुत सारा गन्ना खरीद लिया किसानों से, किसानों को हाई प्राइस दिया तो आ गया, गन्ना सड़ाएगी तो नहीं ना, तो उसे बेचना पड़ेगा, और उसके पास उसको रखने की भी जगह नहीं है, तो उसने चीपर रेट पे दूसरे कंट्री को बेच दिया। लेकिन चीपर रेट में बेचने से जो दूसरे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के गन्ने हैं, अगर मान लो मैं 100 रुपए क्विंटल बेचता हूँ, ठीक है, और मैंने 80 में बेचना शुरू कर दिया, तो उनके 100 रुपए का गन्ना कौन खरीदेगा, वो कंपनी है भट्ट, वो उनका तो भट्टा बैठ गया। तो वो लोग वहाँ पहुंची, तो फिर कोर्ट ने ऐसे कर सकते हैं केस कि मैंने केस नहीं, इसलिए कि आपने दाम क्यों गिराया और आप किसानों को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, वो सस्ते में गन्ना पैदा कर रहे हैं, तो सस्ता पड़ रहा है आपको, तो सस्ते में बेचें, आप उन्हें छूट देना बंद करो। लेकिन वो तो दूसरी कंट्री का मैटर है, दूसरी कंट्री का मैटर है, पर दो कंट्री में ये जो ट्रेड है ना, ट्रेड में डिफरेंस है, क्योंकि अभी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसे ऐसा ये है बात सही, तो वहाँ कोर्ट ने बोला कि आप सब्सिडी देना बंद करो किसानों को, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इट इज नॉट योर लुक आफ्टर एंड आई विल कीप ऑन गिविंग सब्सिडी, तो you, it is not your jurisdiction, who are you to tell me that whether I should give subsidy to my farmers or not, it is their welfare and it is a democratic country। नहीं माना हम लोगों ने, सिंपली डिनाई कर दिया। तो समझ में आ गई ना बात, ऐसा भी हो सकता है कोर्ट में जाओ, लेकिन हमने नहीं माना उनकी बात है कि ये ठीक नहीं बता रहे हो इस तरीके से। तो लेजिस्लेशन में कौन है बताइए, विधान सभा और विधान परिषद। सो English name of Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Now, Vidhan Sabha refers to the Legislative Assembly, which is the lower house of the state legislature, and Vidhan Parishad refers to the Legislative Assembly and Legislative Council। जरा फिर से समझो, लोकसभा और वो समझे थे, अब इसको इसके कौन कौन से दो पार्ट है बताओ। विधानसभा हाँ, विधान सभा का क्या नाम होगा इंग्लिश में, और विधान परिषद, और इसमें अपर हाउस कौन सा होगा, विधान परिषद। हाँ ये लोअर हाउस है और ये अपर हाउस, तो इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली है ना, Yes. तो और जो ये चीज है जैसे मैं पार्लियामेंट कहा था, इसके लेजिस्लेशन को क्या कहेंगे, ये असेंबली, एसएमटी। इसको असेंबली कहेंगे, पार्लियामेंट नहीं कहेंगे। अब पार्लियामेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट की होता है। संसद, से इंग्लिश में बोलते हैं संसद। हिंदी में संसद। और ये क्या हो गया, ये तो असेंबली हो गई कहीं की, ठीक है कि नहीं। से So, हिंदी में इसको बोलेंगे असेंबली को, हम देख के बताएंगे, इसको कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और इसको कहेंगे यस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चीज है। और इसमें भी जो इसके जो मेंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेंबर्स दीस आर नोन एज एमएलए। अच्छा विधान परिषद के मेंबर्स भी देखते हैं, एमपी नहीं इसके नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ विधान परिषद, Here is information from Wikipedia. members of legislative council are called According to Business Standard, MLC, Legislative Council member of legislative assembly and member of legislative council। MLA मतलब समझ गए कि नहीं, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेशन। नहीं Member of legislature. MLA that is members of legislative
असेंबली। सर काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल का मतलब सभा, एक तरीके की परिषद होती है जो क्या करती है, बड़े बड़े निर्णयों में करती है। जैसे अपर हाउस है ना, तो एक काउंसिल है, बहुत लॉरेट होते हैं विद्वान लोग कहाँ पर? काउंसिल में। एग्जाम जैसे में? इसमें भी है ना अपर हाउस, ये एक तरीके की काउंसिल है, यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठते हैं। सर अपने टिकट मिलता है कुछ? टिकट नहीं, अब जैसे उनको चुन चुन के भेजा जाता है। अब जैसे बीजेपी का 20 का कोटा है, तो 20 बहुत अच्छे अच्छे लोग जो सम्मानित है बीजेपी के, वो मैनिफेस्टो से प्रभावित हैं या उसकी योजनाओं से प्रभावित हैं या उसके मोटो ऑफ वर्किंग से, कुछ होता है ना कार्य प्रणाली, Yes. सो दैट इज सर हर लेकिन टिकट लेना पड़ता है ना, कौन सी पार्टी में जाना है? पार्टी में। अब जैसे वो लता मंगेशकर, उसको उसने उठाया, बोले तुम बीजेपी से प्रभावित हो, हाँ हाँ प्रभावित है, हम तुमको भेज आए, तुम जब वहाँ बीजेपी का कोई भी आएगा बिल, तुम हाथ खड़ा कर देना। तो लता मंगेशकर कहती खड़ा कर देंगे हम तो हाथ। सर एमएलए सर लोकसभा के मेंबर्स को भी देते हैं। MLA ये किसके मेंबर से बताओ? विधान असेंबली के? असेंबली के। क्या ये बताओ, ये जो राजस्थान में सरकार चल रही है, क्या वो असेंबली गवर्नमेंट है ना? राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट है कि नहीं? तो स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, राज्य सरकार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राज्य सरकार। और राज्य सरकार में ये जो चीजें हैं दोनों ही इलेक्टेड हैं, लेकिन ये इलेक्टेड है थ्रू पब्लिक ने। अशोक गहलोत कौन है, MLA है कि MLC? एमएलए MLA है क्योंकि वो इससे यहाँ पर बैठते हैं, और कुछ ऐसे भी मेंबर्स होंगे जो यहाँ की विधान परिषद में होंगे। सर वो किससे इलेक्ट होते हैं? वो यहाँ के गवर्नर से राष्ट्रपति सलाह करके उनको मनोनीत कर देता है MLC। जैसे उनको ये इन्होंने भेजा कि भाई हम इतने हैं, आपके कितने कितने लोग यहाँ जीते हैं, उसके बेसिस पे परसेंटेज बनेगा। उतने लोगों को बीजेपी, उतने लोगों को कांग्रेस या दूसरी पार्टियां अपना चुने, जहाँ जहाँ चुनना है सीधे भेज दें। ये डायरेक्ट एंट्री कहलाती है। सर लोकसभा के पीपल को क्या कहते हैं? क्या? लोकसभा के मेंबर्स को क्या कहते हैं? MP। MP लिखो। इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड, हेड इसका स्पीकर हुआ, अब मेंबर्स को क्या कहेंगे बताओ? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मीनिंग मालूम है? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा अब जरा देखें। सर मेंबर होगा। हाँ मेंबर्स, मिनिस्टर थोड़ी ना सर है। आप राज्यसभा के वो देख के बताते हैं, क्या वो भी MP हैं? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर कॉल्ड, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर कॉल्ड Membership is limited to 250 members. members of Rajya Sabha are called, members of Rajya Sabha are called। MP ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे कहीं का भी हो। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये भी क्या कहलाएगा? MP। मेंबर्स MP। और यहाँ पर MLA और MLC समझ गए हो? MLC का नाम बताओ, क्या नाम है? खुशबू, MLC का फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ Legislative Council। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो लिखा ही है ना, Member of- तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल। जैसे MLA, ऐसे MLC लिख लेना है, अगर ना याद रहे तो लिख भी लो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो इसके हेड होते हैं ना, MLC हेड है ना? कौन? MLC हेड है ना? MLC हेड नहीं है, MLC वहाँ के सारे मेंबर्स हैं। अब उनमें थोड़े कांग्रेस के होंगे, जैसे MLA थोड़े से बीजेपी के होंगे, मेंबर्स हैं ये। अब जैसे अब इसमें कितने मेंबर्स होंगे बताओ? 546 नहीं होंगे, 245 नहीं होंगे। अब अलग अलग पार्टी के होंगे ना वो। सर नहीं जैसे अगर सब, हाँ बोलो क्या कहती है? सर जैसे लोकसभा में सर ज़्यादा मेंबर से बट ज़्यादा एजुकेटेड भी बने, राज्यसभा में ज़्यादा बढ़े हैं ना? ज्यादा एजुकेटेड वहाँ पे है। सर वैसे ही सर विधान परिषद में भी ज़्यादा बड़े हैं। ज्यादा एजुकेटेड है, वो डायरेक्ट एंट्री है, वो कोई इलेक्ट थोड़ी ना होते हैं, बस वो मनोनीत किए जाते हैं हमारी तरफ से। नहीं, मतलब हम लोग करते हैं। हम लोग नहीं, मतलब जो पार्टी का हेड होता है वो कहता है भाई हम इनको भेजना चाहते हैं, प्रपोजल देते हैं, या फिर उसको जो गवर्नर होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। बस यही बात है।
मनमोहन सिंह ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा, 10 साल प्रधानमंत्री वो रहे, बना दिए थे ना वो यहाँ के थे। अब ये लिखो मेंबर्स कितने हैं, 5 546 और ये 245। 245 ओके, अभी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो किसके लिए चुनाव हो रहे हैं, एमएलए के लिए कि एमएलसी के लिए? एमएलए के लिए चुनाव हो रहा है। उन्हीं एमएलए में जो विनर होगा वो अपना हेड चुन लेगा, वो फिर क्या बनेगा? सीएम। ये बात समझ, हैं? कैसे बचेगा? गोवा का हो रहा है, यूपी का हो रहा है, उत्तराखंड का, तो वहां से पीएम बन जाएगा क्या? नहीं सब जगह के 5 सीएम नहीं बनेंगे। पंजाब का हो रहा है, मणिपुर का हो रहा है, नहीं समझेगा? ठीक है कि नहीं? तो एमएलए का चुनाव हो रहा है, ये चीज। अब ये दूसरा क्या है, जैसे पीसीएस मतलब है ना, मतलब वो अलग अलग होते हैं, तो वो चीजें राज्य सब एक होता है कि केंद्र के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरा क्या होता है कि राज्य की प्रबंधकीय सेवाएं, तो आईएएस और दूसरा था पीसीएस। तो पीसीएस का फुल फॉर्म देख लें, फुल फॉर्म ऑफ पीसीएस पब्लिक सिविल सर्विसेज है। प्रोविंशियल का मतलब राज्य होता है, प्रोविंशियल का क्या मतलब होता है, ये लिख लो पीसीएस, क्योंकि लोग कहते हैं हम आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, तो दैट इज ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, समझते हो? यस सर। ये इंडियन पुलिस सर्विसेज। सो प्रोविंशियल, सर ये एग्जीक्यूटिव का है। हाँ देखो ये हमने लिखा ही प्रोविंशियल का मतलब प्रोविंस, हमारे यहाँ कितने प्रोविंस हैं, कितने राज्य हैं? 28 तो एग्जीक्यूटिव, तो प्रोविंस का मतलब तो राज्य होता है ना, राजकीय। इसी को स्टेट भी कह सकते हो, प्रोविंस भी कह सकते हो, नहीं? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब हैं। सर ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? प्रोविंशियल सिविल पीसीएस हेड होता है उसको। अब वहाँ का आप कुछ भी बड़ा कार्यभार दे दो, अलग अलग जिला होते हैं ज्यादा ज्यादा और डीएम ये सब तो नहीं बनेंगे क्या? डीएम ये सब तो आईएएस बनते हैं ना। हाँ आईएएस, फिर उसके अलावा ये सर, ये बनते क्या हैं, बनते हैं? लेकिन ये राज्य के बड़े बड़े हैं तो इनको कहीं भी वो लगाएगा, अलग अलग जगहों के लिए लगा सकता है, बट डीएम तो आईएएस ही बनेगा, ठीक है? और ये अपने 20% इनको दे भी सकता है, देता है आईएएस राज्यों को, तो 20% दे भी सकता है, 20% ले भी सकता है। जैसे सुबह ये कौन थे वहाँ बंगाल में, वो बाढ़ का दौरा करने गए थे ना प्रधानमंत्री, तो उनका सचिव आया था ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी का जो सचिव है क्या वो आईएएस था? सर कौन है भाई प्रधानमंत्री दौरा करने गए थे बाढ़ का वेस्ट बंगाल में, सर 10,000 विजिट करने के लिए गए थे ना, तो वहां पर ममता बनर्जी क्या आई और वो देखे अरे यहाँ तो शुभेंदु अधिकारी बैठे बीजेपी के, वो तुरंत वापस चली गई। अब प्रधानमंत्री आए तो तुमको ब्रीफिंग देनी चाहिए कि तुम्हारे कहाँ कहाँ बाढ़ आई है, और साथ में उनका आईएएस भी चला गया सचिव। सचिव कौन होता है? दैट इज Chief जो उस एक तरह का काउंसलर होता है, सेक्रेटरीट पे सेक्रेटरी नहीं होता है, सेक्रेटरीट होता है कि नहीं सचिवालय, तो वो इससे प्रधानमंत्री नाराज हो गए, कहने ये क्यों चला गया, ये तो आईएएस है, इसको हमने भेजा था वहाँ। कहाँ जाते हैं? मतलब वो भी चला गया अपने मुख्यमंत्री के साथ, वो हेल्प करने के लिए। मुख्यमंत्री क्या क्या बोलती, सबको एक एक आईएएस मिला होता है। कौन देता है? सेंटर देता है कि नहीं? तो सेंटर देता है, तो उसने बोला कि अगले ही दिन तुम चलो दिल्ली आओ, उसी सचिव को बोला आईएएस को, तो ममता बनर्जी ने तुम कहीं ना जाना, क्योंकि सारा वो राइट हैंड है, सारा काम तो वही कर रहा ना ममता बनर्जी का। बोले नहीं वो नहीं आ सकता, उसको हमने दूसरे पोस्ट पे लगा दिया, अब वो नहीं आ पाएगा। तो अब ये नियम बना दिया है केंद्र में कि बिना किसी मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए हुए वो जब चाहे अपने आईएएस को बुला सकता है। केंद्र में नियम पास हो गया है तो बहुत हल्ला हो रहा है, ऐसे तो संघीय ढांचा ही खराब हो जाएगा। तुम किसी आईएएस को बुला लोगे, अब वो मुख्यमंत्री का सारा सीक्रेट जानता होगा और तुम उससे पूछोगे बताओ क्या क्या है, बताओ 2 दिन हो सकता है कि नहीं? तो अब ममता बनर्जी ने तो मना कर दिया, सर प्राइम मिनिस्टर क्यों जानना नहीं चाहता, लेकिन अगर इस तरीके से कोई फिर चीफ मिनिस्टर कोई ऑर्डर नहीं मानेगा, अगर वो वहां जाएगा कॉपरेट नहीं कर पाएगा, तो अब उस पर ये बात चल रही कि तुम सचिव कौन होता है? जैसे तुम्हारा कोई सलाहकार होगा तो राइट हैंड है, जैसे किसी डायरेक्टर की सेक्रेटरी होती है
पीए हाँ हाँ पीए, right. वो सब जानती है राइट, कब आते हैं कितने बजे आते हैं, हर चीज उस वही तो करेगी, होगा कि नहीं? Yes, तो sir. अगर उसको कोई बुला ले जाए तो समझो तुम्हारी कंपनी का आधा भेज जान गया, नहीं जान जाएगा। ये ये समझ में आ गया, एग्जीक्यूटिव में पीसीएस है, सब कुछ है। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आएगा। क्या बोले? ओके, हाई कोर्ट भी आ जाएगा। और फिर इसके अलावा क्या होगा, जो थर्ड टीयर है, ठीक है, ये हम जो आपको बता रहे हैं, दीज आर वर्टिकल टीयर्स, ये रेल के डिब्बे हैं, सबसे ऊपर सही फर्स्ट अपर है ना, फिर मिडिल बर्थ सही और फर्स्ट है ना, सबसे टॉप मोस्ट है, वर्टिकल डिवीजन है। ओके सर। तो वर्टिकल डिवीजन है। और फिर अब हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन कहें तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये इनके में नहीं कर सकता है कुछ, ये इनके में नहीं कर सकता। और ये सर सर ये लेजिस्लेटिव जो ऑर्डर देगा वो तो भाई ऑर्डर देता है, एग्जीक्यूटिव से बोलेगा हुआ ऐसा, बोला ये मैंने डिमोनेटाइजेशन बोला है, इसको 5 दिन में कराओ, बोले रुकिए हमारे काम करने की अपनी पद्धति है, हम 2 महीने में कराएंगे। तो ये चीज होती है। एग्जीक्यूटिव इसकी नहीं मानता है, कहता आपने ऑर्डर दे दिया, अब जुडिशरी देखेगी हम कितने दिन में करा रहे हैं, अब आप कोई नहीं होते हैं करने वाले। बात समझ में आई कि नहीं? वैसे तो जो भी है थोड़ा बहुत इनका प्रभाव रहता है, बट ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं अब जल्दी जल्दी कराओ, सिलेबस जल्दी कराओ, या टीचर ऐसे करें, नहीं, उनके अपने काम। उससे क्या क्या फायदा होता है बताओ? सर किससे? अगर ये काम 2 महीने में कराए तो उससे फायदा क्या है डेमोक्रेसी? सर अपने अपने राइट्स हैं। बोलो, बताओगे तो। इससे ये फायदा होता है कि इन केस द डिसीजन इज नॉट पॉपुलर टू पब्लिक, देन दैट डिसीजन कैन बी टेकन बैक। अगर आप काम को एक पैटर्न में धीरे धीरे कर रहे हो, एंड इट ड्यूरिंग योर वर्किंग और एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब, इफ इट लुक्स इम्पॉपुलर, देन इट कैन बी रिवर्टेड बैक। भाई आपने किसान बिल पास किया, धीरे धीरे लगा रहे हो, लोगों को नहीं बोलो रोल बैक करो। जैसे मंडल कमीशन का भी। हाँ, कुछ भी ऐसा होता है। तो एक अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो उससे क्या होगा, लोगों में डिसकंटेंशन बढ़ेगा, डिसकंटेंट हो जाएंगे, असहयोग की भावना बढ़ेगी। लेकिन अगर वो अपने पैटर्न पे करेगी धीरे धीरे, तो डिसीजन क्या होगा, वापस भी लिया जा सकता है कि नहीं? यस। तो इसलिए कोई किसी पर ये नहीं है कि वो दबाव नहीं डाल सकता, लेजिस्लेचर का कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा प्रेशर होता तो फिर ये आपके टीचर और ये सब कर पाते, वो भी तो इसी में आते हैं, उनके सर पे लगता है कोई बैठाइए प्रधानमंत्री, ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता है। और ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर में फिर जो भी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं, ठीक है, तो वो उसका अपना है। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसके अंदर में लिख सकते हैं, उसी के अंदर में। सर थर्ड कौन सा होता है? और थर्ड क्या? तो थर्ड में आएगा ना डिस्ट्रिक्ट सर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देखते हैं, सर यहाँ पे परीक्षा इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कमिंग अंडर लोकल गवर्नमेंट? देख के बताएं। डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नर विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इस तरीके से लोकल कोर्ट होती है। तो अब हम बता देते हैं, द मेन डिफरेंस इज लोकल कोर्ट इज हर्ड बाय मजिस्ट्रेट विद लॉयर्स with no jury, and district court where judges, barristers and juries play their role। आपको मालूम है बैरिस्टर कौन होता है और एडवोकेट कौन होता सर है? बैरिस्टर तो दूसरे कंट्री में होता है ना, आईएफएस। बैरिस्टर, यस, जो दूसरे कंट्री से जिसने लॉ किया वो बैरिस्टर कहलाता है। और इस तरीके से एक एडवोकेट कौन होता है कि जिसने LLB पास कर ली है, और फिर उसके अलावा जो प्रैक्टिस कर लेता है उसे लॉयर बोलते हैं। उसे लॉयर कहते हैं। ये 3 डिफरेंस भी समझ, लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट। एडवोकेट आपने LLB पास कर ली, एडवोकेट हो गए। आपने लॉयर एडवोकेट बन के फिर जो लॉ सीखता है। अगर मान लो आपने 2-4 केस लड़े हैं तो लॉयर, तो आप क्या बन गए? लॉयर। लॉयर बन गए। आपको वहाँ की जो काउंसिल है उसने कर दिया। और बैरिस्टर जो बाहर से, पहले बैरिस्टर होते थे हमारे यहाँ, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय में, क्योंकि हम बाहर से लॉ पढ़ के आते थे, ठीक है। तो अब ये बता रहा है जो लोकल कोर्ट है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा हेडेड है। मजिस्ट्रेट तो DM है। डीएम। सर मतलब बैरिस्टर जो फॉरेन से आ रहे हैं। फॉरेन से पढ़ के आई हो तो बैरिस्टर हो। भारत में तुमने लॉ किया है सर आईएफएस advocate ऑफिसर है। को ही बोलते हैं ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं उनको बैरिस्टर्स बोलते हैं।
अब अलग से उनको इस तरीके का डेकोरेशन दिया हो तो पता नहीं, बट बैरिस्टर वही होता है। अच्छा, अब एक और बात है, लोकल कोर्ट होती है, उसमें मजिस्ट्रेट सुनवाई करता है, वहाँ कोई ज्यूरी नहीं होती है, कोई जज नहीं होता है, लोकल कोर्ट है जिसकी आप बात कर रही हो। अब लोकल गवर्नमेंट के अंडर में कौन आएगा? लोकल कोर्ट, वो मजिस्ट्रेट सीधा देखेगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो तीसरी चीज हम क्या बताने जा रहे हैं, जो तीसरा टेयर कौन सा है? पंचायती राज, जिसको कि कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, है ना? लोकल गवर्नमेंट। नाउ institutions of local government. Institutions of local government. Now, 3 tier structure होते हैं पंचायत में भी, एट विलेज में भी। That is विलेज भी हो सकता है। देखो, सबसे पहले है लेजिस्लेटिव। तो इसमें क्या होता है, अगर ये विलेज है, ज्यादा वैसा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि नियम बनाने, कानून वानून ये नहीं बनाते हैं। अगर विलेज में है तो उसको कहेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम सभा पंचायत, ये ग्राम पंचायत हो गई। और इसमें क्या होगा, सरपंच होंगे। कौन होंगे? सरपंच, इसके मेंबर्स होंगे। अलग अलग ग्राम पंचायत में एक सरपंच होगा, बहुत सारे सरपंच थोड़ी ना। सर 5 होते हैं। सर आपने बताया। सर सरपंच तो 5 है। पहले पंचायत कहलाती थी ना, नाम नहीं बदला गया, पंचायती राज। पंचायती राज है। लेकिन बस पंचायती राज में मजिस्ट्रेट फैसला सर है। सरपंच हेड होता है एकदम। सरपंच ही चुना जाता है। एक गांव में 500 लोगों में एक सरपंच है। 500 लोगों ने। 500 लोग, अच्छा 500 लोगों का गांव होगा, तो उसमें एक क्या होगा, सरपंच। बड़ा है। मान लीजिए जैसे 20,000 लोग हैं तो ब्लॉक है, तब क्या कहलाएगा? ब्लॉक हेड। ब्लॉक। सर तो, आपने ब्लॉक हेड का नाम बताया तो अगर मान लीजिए ब्लॉक है, तहसील, ब्लॉक को क्या कहेंगे? तहसील। सर तहसीलदार। तहसील। नाउ इन दिस केस देयर विल बी पंचायत समिति। सर ये क्या होता है? उसमें कई पंच होंगे। पंचायत समिति, बात समझ में आई कि नहीं? सर इसमें क्या होंगे? समिति बन जाएगी। अच्छा पंचायत मतलब समिति। बहुत सारे विलेज से मिलके भी ब्लॉक बन सकता है। तो वो पंचायत समिति, सारे सरपंच वहाँ बैठेंगे, अपने अपने हित में फैसला लेंगे उनका। और फिर कोई हेड होगा, और फिर एक जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में फिर लाखों लोग होते हैं। जैसे कानपुर में 20 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, तब डिस्ट्रिक्ट बनेगा। सर दिल्ली में तो 1 करोड़ से ऊपर है। है। सर डीएम इनसे बड़ा होता है। देखो, डीएम क्या होगा, किसी जिला का हेड है ये। और इनका हेड कहलाएगा मेयर। मेयर। सोजती गेट के पीछे बना गई हो कभी? त्रिकोलिया मार्केट नहीं गए कभी? वहीं पे बना हुआ है। वो सोजती गेट के बगल में ही है। वहाँ पे ये सारे लोग बैठते हैं। सर क्या अगर यहाँ के चुन के जाते हैं ना वार्ड मेंबर, वो क्या कहते हैं, परिषद। पार्षद। पार्षद। पार्षद चुन के जाएंगे तो वहाँ जाते हैं सारे। पार्षद कौन होता है? पार्षद का मतलब है कि समझो अरविंद नगर, ये गोल्ड कोर्स सोसाइटी 4-5 जगहों से निकलते कोई चुन गया, वो क्या कहलाएगा? पार्षद। पार्षद। अभी इनके इंग्लिश नाम बताने, बुक से देख के बताना है आपको। देखो, फिर इसके अलावा क्या है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। सर आप भी लड़ सकते हैं ना। बोलो। पार्षद से आप भी कोई लड़ कर सकता सकते हैं। कोई भी लड़ सकता मतलब 18 नंबर ना। ये 25 होता है। 25 एबव होगा। 18 एबव 18 वोटिंग है, वोट कर 25 एंड एबव कहीं इलेक्शन लड़ना। और सर प्रेसिडेंट तो 35 अबव प्रेसिडेंट। ऐसा होगा। 30 नंबर। देखो चेक करके बताइए। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा बताइए? जिला परिषद। जिला परिषद ये 35 होगा, मैं देख के बताऊंगा। तो अब इतना चीज होगा। ओके, नाउ अब जरा देखो, इतनी बात हो गई कि इसके अलावा यहाँ पर लोकल कोर्ट होगी। एक तो ये हो गए,
यस सर। और दूसरा क्या होगा लोकल कोर्ट। इनके अंडर में कुछ और ज्यादा सर एग्जीक्यूटिव में कोई नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, ये जो ऐसे लोग कार्य करते नहीं है, जो जगह जगह जाके सर वो होता है ना क्या म्युनिसिपैलिटी वाले। वो सारा जो म्युनिसिपालिटी है, that we will see, इसमें दूसरा है। अगर ऐसा होगा तो लिख देंगे कि इसमें आएगा नगर निगम। ठीक है, पता कर लेते हैं। नगर निगम कम्स अंडर असेंबली और लोकल गवर्नमेंट। सर सरपंच मेंबर कौन होता है? अभी सरपंच है, बस सरपंच है, यही है, एक मेंबर रहेगा बस। ओके, सो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी है। जो नगर निगम है ना जोधपुर, मतलब ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी। तो दूसरी चीज है एग्जीक्यूटिव में आप लिख लें नगर निगम। नगर निगम क्या है कि झाड़ू वाले ये सारे है ना, यस सर। तो ये है लोकल गवर्नमेंट। इसको कहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और तीसरी चीज क्या हो गई? जुडिशरी। जुडिशरी करके ना बोलो, लोकल कोर्ट, और उसका हेड है मजिस्ट्रेट, वही निर्णय दे देगा। सर तो उसका एक वो तो अपने ऑफिस में। हाँ, इसकी बात मत करो। अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होगा? हाँ मेयर। मेयर। सर मेयर कहाँ का है? देखो ये नगर निगम में जो हेड है, और मान लीजिए कहीं कहीं से ये सब चुन चुन के जा रहे हैं, ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सब मिल करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन्हीं का ही है। अच्छा। ठीक है कि नहीं? सर वार्ड मेंबर्स का हेड वो जो वार्ड मेंबर है वही पार्षद। अलग अलग वार्ड मेंबर्स होते हैं ना, वो पार्षद है, और पार्षद का हेड है मेयर। अभी इसको प्रॉपर्ली आपको एक चार्ट, हमने फ्लो चार्ट दे दिया है, अभी बुक में प्रॉपर्ली लाइन से लिखा है। यस। वहां जाओगे तो अभी फिर सब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मैजिस्ट्रेट है, तो जो मैजिस्ट्रेट है उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? डीएम। डीएम का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का हिंदी नाम क्या है बताओ? जिलाधिकारी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी। अच्छा ये बताओ ये कौन बनता है? सर आईएएस बनेगा कि आईपीएस? आईएएस। सही कहते हो। किसी कहीं दंगे हो गए, सबसे पहले जिलाधिकारी को निकाला जाता है, और इसका हेड मेयर होता है। फिर कौन निकालता है? देखो आईएएस को बदल देता है राज्य सरकार, सर सीएम। सर सीएम बदल सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बदल देगा, नहीं तो फिर बात हो जाएगी। और उसी के अंदर में ये सारे लोग रहते हैं। ठीक है, यस सर। जिला लेवल पर जिला परिषद, तहसील लेवल पर ये ब्लॉक हो जाता है, पंचायत समिति हो जाती है। ओके, इतनी बात तो हो गई। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोगों को समझ में आने लगी हैं। हाँ बोलो। सर प्राइम मिनिस्टर भेजता है ना आईएएस। प्राइम मिनिस्टर सर वो तो एग्जाम लेके बनते हैं ना। अरे ये बन गए, ये इलेक्टेड है, ये सब सेलेक्टेड है, मतलब सब भेजता है यूपीएससी देके बनते है हैं ना? सर तो स्टेट अब में इनमें भेजता कोई इनका होगा हेड, वो सब जगह भेजेगा। सर क्या? सर क्या? जो मतलब एग्जीक्यूटिव में आईएएस का भी कोई हेड होगा ना, चीफ सेक्रेटरी। वो चीफ सेक्रेटरी ही होगा। Yes. सही कह रहे हो, ये हमने लिखा नहीं। चीफ सेक्रेटरी का State मतलब का- मुख्य सचिव, तो वो चीफ सेक्रेटरी सबको भेजेगा। नहीं सर आपने बताया ना वो कौन है? आपने वो जो मोदी जी जो हाँ तो वो ना होता क्या है कि एग्जीक्यूटिव है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। कहने के लिए है कि तो उसी उन्हीं के आईएएस होंगे ना फिर, तो वो चीज़ ऐसा ये चोरी चोरी है। मतलब जैसे अगर राम मंदिर है, निर्णय तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये लोग कहते नहीं बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है। अब हम लोग कहते हैं भाई ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनकी ये सब इनके प्रभाव में रहते हैं। अब जैसे कोई कह दे कि
इसने मोदी जी ने बुलवा दिया, तो मोदी जी बोलेंगे हम कैसे बुलवा सकते हैं, हमारा क्या लेना देना, वो तो एग्जीक्यूटिव है। और लेकिन बुलवाते वही हैं। जैसे इंदिरा गांधी या उनके समय में पहले में खूब डोमिनेशन रहा है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी उन्होंने कहते साइन करो इसमें मोहर लगाओ। तो लगाना ही और पड़ता है। मोरारजी देसाई थे ना, इमरजेंसी जब लागू की थी 75 में, बोले लगाओ नहीं तो सेना तुम्हारे चारों लगा दे, सेना उसी की है। तो कह रहे तो उसी सेना को तो प्रेसिडेंट की है ना, तो कह रहे तुम ही को हम कैप्चर करवा लेंगे। बोले हमने तो लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया, इनको मरवा दिया, हमको तुम्हारी बारी है, साइन करो इसमें। तो वो चीज हो जाती है भाई, एक वो गुंडा राज हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री सब सुभाष चंद्र बोस को मरवाया गया, सब बड़े बड़े लोगों को कांग्रेस ने मरवा दिया। तो वो क्या है कि धमकी वाला काम होता था कि अगर पसंद नहीं आया तो वो पहुंचे भी, कल की बात थी कि राजीव गांधी को पसंद नहीं आया, कर्नाटक के जो थे राजीव गांधी जब वो प्रधान वो थे, इंदिरा गांधी के लड़के थे, बल्कि प्रधानमंत्री भी नहीं थे, वो पहुंच गए कर्नाटक में, कर्नाटक सीएम और 26 अपने मिनिस्टर के साथ उनके स्वागत के लिए आए। बोले ये क्या 26 मिनिस्टर लेके आए हो? अगले दिन गए वो मम्मी वो 26 मिनिस्टर लेके ऐसा तुम्हें स्वागत नहीं किया, निकालो उनको, अगले दिन निकाल दिया। ये हालत है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? तब तो वो गुलाम हो जाएगी। स्टेट के अपने कल्चर है, रूल है, लेकिन पहले ऐसा होता रहा है कांग्रेस के राज। वो जो सेंट्रल सीएम को सीएम को हटा दे, कुछ भी डिस्प्लीजर हो जाए ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अभी अमरिंदर सिंह ऐसे थे, वो मानते नहीं थे, तो बहुत दिन से चल रहा था, फिर हटा ही दिया। मालूम है पंजाब के सर कौन अमरिंदर सिंह सीएम थे ना, हटाया? हटा दिया सोनिया गांधी ने, बोला कि नहीं हमारी पार्टी के। सिद्धू को बना दिया, फिर सिद्धू को भी लीडर नहीं बनाया, चन्नी को बना दिया, नवजोत सिंह सिद्धू, हाँ वही कपिल शर्मा। नवजोत सिंह सिद्धू। तो ऐसे चलता रहता है ये, मतलब ये नहीं कह सकते कि आप चोरी चोरी बोल दो कि प्रधानमंत्री ने भेजा है, ऐसे खुलेआम मत बोलो। अरे तो हम बता रहे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या है ना, ये नहीं कह लिख नहीं सकते हो आप कि वो भेज सकता है, ये नहीं लिख सकते। करता है, सब कुछ करता है, उसके प्रभाव में ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया होगा। भाई वो बोलेगा हम दे रहे, तुम बचा लोगे, दंगे होंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे हम बचा लेंगे, तुम 2 दिन। समझ आई बात की नहीं? ऐसा होता है ना, निर्णय देना हिम्मत की बात है, फिर उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसे कौन देखेगा? तो इस तरीके से निर्णय दे दिया। पहले भी उसे मालूम है जज को, लेकिन नहीं दे रहा था कि कुछ हो ना जाए। ये चीज सर किस पे निर्णय? किसी भी चीज पे, राम मंदिर पे निर्णय है। पहले ये बात आती कांग्रेस के समय में, तो बोलते तुम्हें हिजाब लगाना है, कांग्रेस न कहती तुम हिजाब पहनो, बुर्का पहनो, जाओ स्कूल, हमें कौन है, क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए। फिर बाद में बुर्के के अंदर बंदूक लेके भी जाओ मारो लोग, 2-4 लोग पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान में क्या हुआ, 500 बच्चे मार दिए, बुर्के के अंदर बंदूक लेके गया था स्टैंड में, किसने लोग स्कूल में मार दिया था बहुत। 500 बच्चों को मार दिया, उग्रवादियों ने, मिलिट्री के बच्चों को। मिलिट्री उनके ऑर्डर पे काम नहीं कर रही थी, आतंकवादी कह रहे थे तुम मेरे कहे के अनुसार काम करो, मिलिट्री ने उनको बनाया आतंकवादियों को, लेकिन मिलिट्री फिर आतंकवादियों को ही मारने लग गई। इमरान खान की सरकार ने कहा सफाई की जरूरत है, इनको आतंकवादियों को मारो। जहाँ 2-4 आतंकवादियों को मारा, बोले हम ही को मार रहे हो तुम, अब हम तुम्हारे बच्चों को मारेंगे। तो वो ऐसे स्कूल में नहीं गए, मिलिट्री स्कूल में गए जहाँ सैनिकों के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे समझो केंद्रीय विद्यालय, ऐसा उस तरीके से गए, और वहाँ पर एक एक करके सबको, बहुत छोटे छोटे से बड़े बच्चों तक को सबको मार दिया। 2-3 साल पहले का है, ये नहीं है, लिखा नहीं था। तो ये चीज है, तो ये चीज क्या है कि यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि फिर उसमें कौन आ जाएगा, जब आइडेंटिटी नहीं रहेगी कौन आ जाएगा स्कूल में? नहीं, बच्चों में समानता रहेगी। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस।
Now, next is, ये तो हम लोगों ने देख लिया डेमोक्रेसी के पिलर्स कौन कौन से हैं, वर्टिकल भी देख लिया अरेंजमेंट। Now, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर देखो, सही क्या? अच्छा, यानी वर्टिकल डिवीजन ऐसे, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सर ये स्टेट, संडे वाले एग्जाम में ये एसएसटी नहीं है क्या? ये तो आपको खुद ही तैयार करनी पड़ेगी। और हॉरिजॉन्टल डिवीजन, सर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन में लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। ऐसे ही पार्षद लेजिस्लेटिव है, वो नियम बनाएंगे कि कब कब ये झाड़ू लगाने वाले जाएंगे, और फिर उसके बाद जो झाड़ू लगाएंगे वो एग्जीक्यूटिव हो गए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन हो गया या उसके मेंबर्स हैं वो जुडिशरी हो गए। सर डीएम तो एग्जीक्यूटिव में आएगा ना? नहीं, डीएम ही तो निर्णय देगा, वो लोकल कोर्ट है। तो सर वो लोकल लेवल में सर दोनों हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों। मेयर जो है वो इसमें आएगा, इन दोनों का आएगा। मेयर इसका है तो डीएम हुआ। और तीसरा क्या है, सर एग्जीक्यूटिव। अच्छा, जुडिशियरी। मेयर भी तो सभी पार्षदों का हेड होता है कि नहीं? अच्छा, ये तीन चीज है, और इसको टोटल को क्या कहेंगे? क्या पावर शेयरिंग? हाँ, पावर शेयर हो रही है ना इनके बीच में। यस सर। अगर पावर शेयरिंग, इक्वल पावर होती है ना सब। बोलो, पावर है, गवर्नमेंट की पावर है, तो अगर मान लो जो यूनियन गवर्नमेंट है बोले लो सारी आधी पावर तुमको, राज्य सरकार में, तो क्या अपनी पावर शेयर नहीं करी, अपनी कम करी तभी तो दी। इंडिविजुअल पावर। हाँ? सर यूनियन गवर्नमेंट वाले सर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसने अपनी कुछ पावर दे दी कि ठीक है तुम अपने कानून बनाओ, अपनी संस्कृति, अपने पैसे लो, टैक्स कलेक्ट करो, और उसने अपनी पावर किसको दे दी? लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट को पावर देने का मतलब है पैसा भी देना। बहुत सारे 5-5 करोड़ मिल रहा है इनको, कहाँ केबल लगाया करते थे दयाराम, ये विद्यार्थी में नहीं खड़े रहते थे, केबल कनेक्शन दिया करते, तो आप समझ पावर शेयरिंग हो गई। बन कैसे गए? बन गए क्योंकि वहां पर कोई शेड्यूल कास्ट था ही नहीं, वो पूरे वहाँ ब्राह्मण ही रहते थे। बोले शेड्यूल कास्ट की सीट है, ढूंढने लगे कहाँ शेड्यूल कास्ट है, बोले हम यहाँ रहते हैं शेड्यूल कास्ट, तो नहीं फिर खड़े हो जाओ, अब सबको देना पड़ा। एक ही मेंबर था, वही जीत गया। रिजर्व सीट थी, रिजर्व सीट, वहाँ उस जगह पे कोई घर ही नहीं था शेड्यूल कास्ट, वहीं का कोई मेंबर खड़ा हुआ था। सर कौन? हाँ? दयाराम। दया। सर ये यहाँ था विद्यार्थी की शॉप में। सर केबल का काम करते थे। दयाराम देख लो, अभी उन्होंने अपना खोल ही लिया है। ये विद्यार्थी में काम करते थे। पे फोटो रखा। अरे सर आपने व्हाट्सएप किया? वो सबको फिर वो मेंबर्स भी भेजते हैं ना कि वो हमारा ग्रुप है, यहाँ टीका लगेगा, अब ये होगा, ऐसे वो भेजते रहते हैं। यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा, इस तरीके से वो ये यहाँ के पार्षद हैं। ठीक है, ये देखो, ये इनका सालगिरह आई, मैं पहचान ये दयाराम। सर ये शेड्यूल ट्राइब सर इस बनने के बाद है पहले। अभी कुछ दिन पहले ये बहुत नाटिस हैं, ये यहाँ के पार्षद। ठीक है ना? तो कभी देखा हो, विद्यार्थी नहीं गए क्या कभी? सर गए। सर, ये विद्यार्थी जी तो है कहाँ पर? हैं? विद्यार्थी स्टेशनरी में किताब लेने नहीं गई हो कभी?
सर ये तो है यही तो चार बड़ा सबसे बड़ी तो यही दुकान है। सर अपने खड़े होते हैं अभी भी जाओगे मिल जाएंगे वहीं खड़े। वो खड़े होके सब हाँ वही तो रहते हैं। ऐसा ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर समझ में आ गया। अब आगे देखो नाउ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट हमने दिखा दिया। सिविल सर्वेंट्स स्टेट, देखो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को हमने दिखा दिया है। तो सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं, फिर से एक बार लिखिए कि प्राइम मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मेक policies and civil servants, ठीक है, ये implement policies and Supreme Court settles dispute regarding policies. सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि डिस्प्यूट को सेटल करेगा। तो सेकंड में क्या है? ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है, ये लेजिस्लेशन है, तीनों का लिख दिया। यस तो सेटल डिस्प्यूट, पब्लिक डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। बात समझ में आई? सेटल डिस्प्यूट झगड़ा, लड़ाई ठीक है, हाँ, दैट इज पब्लिक डिस्प्यूट। और क्या हो सकता है? पब्लिक एंड स्टेट, बिटवीन टू स्टेट, स्टेट एंड यूनियन। पब्लिक का भी तो स्टेट से हो सकता है कि ये सरकार मुझे ये नहीं दे रही 3 साल से। सुप्रीम कोर्ट और सर हाई कोर्ट के बीच में हो सकता है सर कुछ? अगर हाई कोर्ट में आपने सुनवाई की और आपको निर्णय पसंद नहीं आया तो आप सुप्रीम। अपील करो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील टर्न डाउन भी कर सकता है और कहेगा नहीं नहीं जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया सही है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। कई बार वो एक्सेप्ट भी कर सर प्रेसिडेंट कुछ कर सकता है ना सर, फांसी की सजा। प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। तो पब्लिक डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स और डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, इस तरीके से करेगा। अब जरा देखें कि नाउ इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा तो इंस्टीट्यूशंस हैव देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसका एक चार्टर बना होता है। सर वो आपने डिस्प्यूट के बाद क्या लिखा है? डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, मतलब झगड़ा, ठीक है। वो गाना नहीं सुना है, चलो आओ पड़ोसी झगड़ा करें, नहीं सुना है? सर किसने गाया? बहुत बड़े गायक ने गाया है, फेमस गाना। चलो अब इसके बाद इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर, दिस कैन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कहेगा कि लीडर की जल्दी से मेरा काम करो, ये मैंने आदेश निकाला कल तक पारित होना चाहिए, 2 महीने में तो वो नहीं करेंगे, कहेंगे हमारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हम इसी पे करें। दिस कैन बाइंड हैंड्स ऑफ लीडर्स। उससे क्या होगा? इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स मीटिंग कमेटी एंड रूटीन्स, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व, उनमें मीटिंग होगी, मीटिंग भी होगी और उनकी अपनी कमेटी भी होगी, सभा। सर किनकी? जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, कोर कमेटी होगी कि भाई ये निर्णय ऊपर से आया, इसको कैसे लागू करना, कमेटी तो होगी ना। और फिर उसके अलावा क्या होगा? मीटिंग होगी, कमेटी होगी और रूटीन बोलेगा अच्छा सर अब 8 बज गए हैं, आईएएस बोलेगा मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया, 8 घंटे की मेरी नौकरी थी, चला जाए। सर प्राइम मिनिस्टर बैठकर बोल सकता है नहीं, मैंने मालूम, लेकिन वो बोल सकता है। अब वो बात है कि प्रधानमंत्री के अंडर में बोलेगा नहीं, लेकिन वो चाहे तो कह सकता है ना कि मेरा वर्किंग आवर है, हम जाएंगे सर,
प्राइम मिनिस्टर तो फिर हटा नहीं सकते ना IAS। इन लोगों के बीच झगड़ा चलता ही रहता सब है। IAS का तबादला कर दिया तो कुछ नहीं करते, तबादला एक जगह से दूसरी जगह Posting। ट्रांसफर, मतलब कोई बेकार जगह ट्रांसफर करा दिया। यही सब निलंबित कर देते हैं। इन लोगों में चलता रहता है। ये दो Suspend। डिफरेंट ब्रांच हो गई ना, सर अभी मुंबई में भी कराया था किसी एस होता रहता है। सो मीटिंग कमेटी एंड इनमें रूटीन्स होते हैं, रूटीन्स होते रहते हैं। दे ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन। इस वजह से किसी भी कानून के प्रोमलगेशन में, प्रोमलगेशन का मतलब समझते हो लागू होना ना, यस सर। सो दिस लीड्स, ठीक है, दिस लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस regarding promulgation of policies. Of law या पॉलिसी से वो होगा, ठीक है। बट which is frustrating, but some of the delays introduced by institutions are proved very useful. This may be frustrating, या और कई बार क्या होगा, प्रूव वेरी यूजफुल। क्यों यूजफुल हो जाते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड, सर कौन सा? अगर मान लीजिए कोई लॉ लागू होने में 2 महीना लग रहा है हाँ। और गवर्नमेंट को पता चल गया कि सर, पब्लिक तो डिसकंटेंटेड है, उसके लिए विरोध कर रही, तो रोल बैक कर लेगा, है ना। वेरी यूजफुल, दिस मे प्रूव वेरी यूजफुल एज ड्यूरिंग दिस टाइम पब्लिक रिएक्शंस can be वो recorded by government. May study public reaction. तो ऐसी भी बात हो गई। देखो मैंने गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट का मतलब ये ना समझना लेजिस्लेटिव, पहली बात तो ये लेजिस्लेटिव ही समझ हुआ। अब कई बार क्या होती है कि ये दैट इज सुप्रीम कोर्ट कैन टेक कॉग्निशन, कई बार संज्ञान ले लेती है, अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सही निर्णय नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद किसी चीज का संज्ञान लेते हुए कुछ अपनी तरफ से निर्णय दे भी सकते। सर सुप्रीम कोर्ट के भी जज को हटा सकते हैं इम्पीचमेंट में। हाँ ठीक है। नाउ पार्लियामेंट हैज ओन सिग्निफिकेंस। इंस्टीट्यूशन के किसी के भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, किसी के भी, जुडिशरी के भी वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव भी इंस्टीट्यूशन है, सबके हैं। अब पार्लियामेंट के बारे में कहा गया है, पार्लियामेंट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। In all democracy, assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of people of India, has its own significance. आप लोगों का प्राइज मनी संडे को दे दिया जाएगा। क्या? कुछ पैसे आप लोगों ने जीते हैं ना? हैं? ऑनलाइन हाँ। इसी संडे जब आओगे सर कहीं पे क्या? पूरे दे दे। Significance in all democracy and assembly of elected representative in all democracies an assembly of elected representative, ये assembly होती है ना, of assembly का मतलब क्या होता है? सभा, चाहे कहीं की भी हो, elected representative, ठीक है। एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी, टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ, टेक डिसीजन
एंड मेक लॉ। मेक लॉ भी बना सकते हैं या पॉलिसी लेके नाम है, बात मत करो। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सर वो आपने क्या लिखा है इन पीपल ऑफ इंडिया। वो किसके बिहाफ में काम करते हैं बताओ? पीपल ऑफ इंडिया। सर वो इन के बाद क्या लिखा है सर आपने? इन ऑल डेमोक्रेसी, सभी डेमोक्रेसीज में जो ये निर्णय लिए जाते हैं वो किसके लिए लिए जाते हैं और किसके द्वारा लिए जाते हैं? बाय पीपल फॉर। भाई वो निर्णय ले रहे हैं, हमारे ही द्वारा लिए जा रहे हैं ना, हमने भेजा तो हम हमारे बिहाफ में ले रहे हैं ना निर्णय। इतना ही रखो, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। एक दिन और चलेगा ये। सर कर दी गई है। तो आप सैंपल पेपर कराने वाले है ना? मैथ के मैथ्स का। हाँ, तो अब इसमें एक ये चैप्टर है और बताओ। सर यही है सर वो